Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the second part of the loan and lease statement where we are going to discuss rescheduling of periodicity of loan and lease statement, and we will discuss two type of questions on it. Okay, so this is the first one. Mr. Keshav has taken a loan of rupees 24 lakh from a bank at 6% per annum for 6 years. He has to repay 75% of the loan in the first 4 years. Afterwards, he can change the periodicity for the remaining time. So what does it basically ask us for? That the period of repayment of loan is 6 years, but it will be divided into two phases. The first phase will consist of 4 years and the second phase will consist of 2 years. In the first 4 years, we have to pay 75% of the loan, and after those 4 years, the periodicity will get changed. He can change the periodicity for the remaining time, correct? And then it asks us prepare a generalized loan sheet to reflect the repayment of loan. The loan can be repaid in equal yearly, half yearly, monthly, quarterly, bi-monthly installment. Fine. So the format of this question will be a little different from the question that we had previously done. तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि these are the 4 things that will always be given in a loan and lease statement question, right? बट इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि ही कैन चेंज द पीरियोडिसिटी आफ्टर 4 years. मतलब पीरियोडिसिटी जो है मेरी वो इनिशियल फेज में, मतलब जिसमें 4 years है मेरे, उसके बाद में चेंज हो सकती है. तो हम इसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, रादर इनिशियल फेज के अंदर पीरियोडिसिटी जो है मेरी वो डिफरेंट होगी, एंड सेकेंड फेज के अंदर मेरी पीरियोडिसिटी जो है वो डिफरेंट होगी. ठीक है, तो अब हमें इन दोनों फेजेस की डिटेल यहाँ पर लिखनी होगी. इस फेज के अंदर कितने पीरियड का फेज है ये. पीरियड ऑफ द इनिशियल फेज इज 4 years and the period of the second phase is period of repayment of loan minus the period of initial phase. Always try to give cell referencing and not type it manually. मतलब अपने तरफ से इसको कैलकुलेट करके मत लेना, सेल रेफरेंसिंग ही देना बेटर रहता है उससे. नाउ वील हैव टू मेंशन हियर the total number of payments that we are going to make. Total number of payment we calculate by multiplying periodicity and period. तो पहले हम periodicity के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना लेते हैं. मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 5 टाइप्स की periodicity लिखी हुई है जो क्वेश्चन में दी हुई थी, सो दैट हमारा टाइम सेव हो जाए. डेटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट एंड देन सोर्स पे जाके वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ऑल द आइटम्स, प्रेस ओके, एंड हियर वी गॉट दी periodicity. Now we'll use here VLOOKUP function. Lookup value is this and table array is this. We'll freeze the table array because I'll copy this formula to the second phase as well. The column index number is 2 and fine. So I'm gonna copy this here. यहाँ पे periodicity change करके हम quarterly कर देते हैं. Now total number of payment is equal to periodicity multiplied by the period. Enter. Also we have to mention here the amount to be repaid. Amount to be repaid is 80% of the amount of loan. This is actually the principal amount of loan and we have to pay 80% of it. So here we're gonna write, first of all we'll write here the percentage and then in cell adjacent to it यहाँ पर हम उसकी amount find out कर देंगे. 80% of the amount of loan and enter. Correct. Now we are going to find out the installment amount. Installment amount will be different for both the phases. Reason being the periodicity is different, इसलिए installment amount भी दोनों phases के लिए different होगी, तो हमें दोनों के लिए अलग से calculate करनी पड़ेगी. We use PMT function for calculating installment. Now the rate is 6% divided by the periodicity of initial phase. Then it asks for the total number of payment for the loan. Total number of payment is
this much of the initial phase. Then they ask for the present value, so here we are going to put negative and then give cell reference of the amount of loan. Now also one more thing, whenever we have this question जहाँ पे हमारे पास रीस्केड्यूलिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर फ्यूचर वैल्यू भी मेंशन करते हैं. फ्यूचर वैल्यू क्या है, अब ये है कि मुझे कितना कैश बैलेंस चाहिए इस इनिशियल फेज़ के ख़त्म होने के बाद में. तो मुझे क्या फ्यूचर वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए अमाउंट ऑफ लोन माइनस अमाउंट टू बी रीपेड. करेक्ट, मतलब इसमें से इतनी अमाउंट पे हो जाए, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो मेरी फ्यूचर वैल्यू होगी. ठीक है, ओके. आई गेस इसे यहाँ पे, हाँ. सो आई गॉट हियर द इंस्टॉलमेंट अमाउंट. नाउ we have to mention the same details of the second phase as well. So यहाँ पर भी हम mention करते हैं total number of payment is periodicity multiplied by period. Amount to be repaid in this case will be 1 minus let me just put equal sign first. 1 minus 80% and enter 20%, correct. Then 20% of amount of loan, enter. And now again we'll have to calculate here the installment amount, so we'll use PMT function for that. Rate is 6% divided by the periodicity, which is 4 in this case, and then the total number of payment in this case is 8. Now interesting thing, in this case the present value will be 4,80,000, means the amount to be repaid in the second phase. The reason is कि हमारा amount of loan जो था वो 24 लाख का था, जिसमें से already इतनी amount पे हो चुकी है. ठीक है, इतनी amount already पे हो चुकी है, अब सिर्फ इतनी amount रह गई है. तो हमारे लिए present value अब यही amount है, because it does not make sense पूरी की पूरी amount mention करने का, क्योंकि अब हमें सिर्फ इतनी amount पे करनी है. So पहले माइनस का साइन लगाएंगे, देन वी गिव सेल रेफरेंस ऑफ दिस, एंड द फ्यूचर वैल्यू इन दिस केस वुड बी 0, बिकॉज हमें इस सेकेंड फेज के बाद कितना बैलेंस चाहिए, 0 चाहिए. ठीक है, एंड देन प्रेस ओके. सो हियर वी गॉट द इंस्टॉलमेंट अमाउंट फॉर द सेकेंड फेज एज वेल. नाउ टोटल नंबर ऑफ पेमेंट जो इनिशियल फेज में थी वो 8 थी, नंबर ऑफ पेमेंट सेकेंड फेज में भी 8 थी, तो टोटल कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हम ऊपर कैलकुलेट करेंगे टॉप पे. टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स इज number of payments in initial phase plus number of payments in second phase, and it will give us the total number of payment in the whole loan duration. Now we'll create this loan and lease statement. तो सबसे पहले तो सीरियल नंबर के केस में हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है. we'll use here if function. If this previous number is less than the total number of payment, fix it, then give us the next number, otherwise keep it blank. In case you haven't watched the first video, मतलब first part of this, then do watch it. उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. अगर वो skip कर दिया तो maybe you won't be able to understand. Okay, now opening balance. Opening balance is the amount of loan. It's the amount of loan and enter. Now for calculating interest and installment, the thing is कि जो मेरा interest है वो मेरे initial phase के लिए different है, मेरे second phase के लिए different है. मेरी installment है वो initial phase के लिए different है, second phase के लिए different है. तो हम इसके अंदर if function लगाएंगे. क्या फंक्शन लगाएंगे कि अगर तो मेरा ये जो सीरियल नंबर यहाँ पे है, मतलब जो मेरा यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नंबर है, जो अगर वो इंस्टॉलमेंट नंबर मेरा जो इनिशियल फेज़ की मेरी टोटल नंबर ऑफ पेमेंट है उसके इक्वल है या उससे लेस है, तो आप इंटरेस्ट चार्ज करो जितना इनिशियल फेज़ में होना चाहिए. ठीक है, नहीं तो आप चार्ज करो इंटरेस्ट जो कि सेकेंड फेज़ में होना चाहिए. अब आई लेट यू नो कि कैसे करते हैं. इफ़
this, I mean the period is less than or equal to the total number of payment of the initial phase, fix it, then the interest would be opening balance multiplied by the rate of interest, fix it, divided by the periodicity of the initial phase, and again fix it. Put comma. Now if this condition is not true, then what should happen? Then opening balance multiplied by rate of interest, fix it, but divided by the periodicity of the second phase, again fix it. So यहाँ पर हमारा if function हमने यूज़ किया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें if count function यूज़ करना होता है बिकॉज ऑफ द गार्बेज क्लीनिंग फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे if count function भी यूज़ करेंगे. If count give cell reference of the period equal to 1, put comma, if there is any value in the period, तो ये पूरा फॉर्मूला, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो put comma and keep it blank and enter. Here we got the interest for the first installment. Now same thing we are going to do with the for the calculation of installment. If function, if the period number is less than or equal to the total number of payments of the initial phase, fix it, then the installment amount would be of the initial phase, fix it. If the condition is false, then installment amount of the second phase, fix it, close the bracket. Also we have to use a if count function. So if count give cell reference of the period equal to 1, put comma, and then इसके end पे जाकर फिर दोबारा comma लगा के and enter. So here we got our installment. Now closing balance, ठीक है. I was using if count function at the last because अभी अगर तुमने बिल्कुल अभी अभी सीखा है काउंट फंक्शन यूज़ करना, तो इट्स बेटर कि फॉर्मूला लगाने के बाद में इफ़ काउंट फंक्शन लगाओ. बट अगर प्रैक्टिस हो गई है उस चीज़ की तो फिर इफ़ काउंट फंक्शन से ही स्टार्ट कर सकते हैं. नहीं तो कई लोगों को फॉर्मूला बहुत लॉन्ग लगने लग जाता है, इसलिए मैं इफ़ काउंट लास्ट में लगा रही थी. इफ़ काउंट इक्वल टू 1, द क्लोजिंग बैलेंस इज द क्लोजिंग बैलेंस का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस इंस्टॉलमेंट and then close the bracket. Sorry, put comma, if this condition is false then it should be blank and enter. So here we got our closing balance as well. Now we'll have to use here one more time if count function. If count give the cell reference of this equal to 1, put comma, it will be equal to the closing balance of previous year, otherwise blank and enter. Now we'll just drag it down. Oh. Select the second row and drag it down. We'll just round it off. So here we got our loan and lease statement in the case of rescheduling of periodicity. So now we have one more question to do which is different from this one. Okay, so the question is, Mr. Keshav has taken a loan of rupees 24 lakh from a bank at 6% per annum for 6 years. After 4 years, he can change the periodicity for the remaining time. So the question is almost same. The difference here is, उस क्वेश्चन में हमें बोला था कि 4 इयर्स तक कितनी पेमेंट कर देनी चाहिए, बट यहाँ पर उन्होंने हमें नहीं बताया कि 4 इयर्स के अंदर हमें, यानी कि इनिशियल फेज के अंदर हमें कितनी पेमेंट करनी है. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना होगा पहले ये कि हमें 4 इयर्स के अंदर कितनी पेमेंट रीपे करनी है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम. तो अगर मैं ये बोलूँ कि देखो फॉर्मेट तो सेम रहेगा, ठीक है, फॉर्मेट यही रहेगा. द थिंग इज़ कि मुझे अमाउंट टू बी रीपेड इस क्वेश्चन में पता नहीं है, ठीक है. तो अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी अमाउंट टू बी रीपेड क्या है, तो मतलब उसके बाद तो पूरा क्वेश्चन सेम है. सेम फॉर्मूला सारे यूज़ होंगे लोन एंड लीज की स्टेटमेंट में यहाँ पर, करेक्ट. तो
आई लेट यू नो कि हम कैसे इस अमाउंट टू बी रीपेड को कैलकुलेट करते हैं. इससे पहले हम कॉपी करके दूसरी शीट में पेस्ट कर देते हैं. फाइन. नाउ आई टेल यू कि हम अमाउंट टू बी रीपेड कैसे कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद में पूरा क्वेश्चन सेम तरीके से होगा. ठीक है. तो अमाउंट टू बी रीपेड कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं. अमाउंट टू बी रीपेड कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल फंक्शन. ओके, क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल फंक्शन. अब इसका बेसिक पर्पस क्या होता है क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल फंक्शन का? ये हमें बताता है कि हमें फॉर एग्जाम्पल इतने इंस्टॉलमेंट से लेके इतने इंस्टॉलमेंट तक कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमने पे करा. ठीक है. तो अब इसके अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कितनी है. 16. मतलब मुझे टोटल 16 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है. ठीक है. और मेरे इनिशियल फेज के अंदर इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? 8. तो मतलब मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेकर 8th इंस्टॉलमेंट तक मैंने कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, मैं इस फंक्शन को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकती हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले हम रेट लिखेंगे यहाँ पर. रेट डिवाइडेड बाय द पीरियोडिसिटी. टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इन दिस केस विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट ऑफ द होल लोन. जब हमने पिछले क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करा था उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इनिशियल फेज का ही लिया था. बट हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट जो इनिशियल और सेकंड फेज की मिलाकर है हम उसका सेल रेफरेंस देंगे. देन कम्स प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ लोन. क्यूमुलेटिव वाले फंक्शन के केस में हम कभी भी इसको नेगेटिव नहीं लिखते हैं. स्टार्ट पीरियड इज 1 इंस्टॉलमेंट एंड एंड पीरियड वुड बी 8th इंस्टॉलमेंट. तो हम टोटल नंबर ऑफ पेमेंट इन इनिशियल फेज का सेल रेफरेंस दे देंगे. देन इज टाइप. तो टाइप मैंने बताया था अगर हम बिगनिंग में पेमेंट करते हैं तो 1 होता है, एंडिंग में पेमेंट करते हैं तो 0 होता है. इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो हम 1 या 0 में से कुछ भी लिख सकते हैं. एंड प्रेस ओके. नाउ ये परसेंटेज दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट है, इसे हम जनरल कर देते हैं. तो क्यूमुलेटिव फंक्शन हम यूज़ करते हैं जब भी कोई भी, तो वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू दिखाता है, इसलिए हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो उसके आगे से माइनस का साइन हट जाए. ठीक है. तो ये उसके आगे से माइनस का साइन हट गया है. अब अमाउंट टू बी रीपेड एंड सेकेंड फेज कितनी होगी? वो होगी अमाउंट ऑफ लोन जितना है माइनस अमाउंट टू बी रीपेड इन द इनिशियल फेज एंड एंटर. ये भी परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट हो रखा है, इसे भी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमें कितनी अमाउंट पे करनी है इनिशियल फेज के अंदर, कितनी पे करनी है सेकंड फेज के अंदर. नाउ द क्वेश्चन इज सेम जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा था. ठीक है. तो क्योंकि अब यहाँ पर हमारी अमाउंट टू बी रीपेड चेंज हो गई है तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट को भी हमें दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा. यहाँ पर हमने सेल रेफरेंसेस कुछ और दिए हुए हैं इसलिए यहाँ पर ये ऐसे दिखा रहा है. यहाँ पर हमें बस PMT फंक्शन यूज़ करना है जैसे हमने पहले उस क्वेश्चन में यूज़ किया था. PMT फंक्शन यूज़ करना है. रेट इज़ 6% डिवाइडेड बाय द पीरियोडिसिटी. टोटल नंबर ऑफ पेमेंट विल बी 8 इन दिस केस. द प्रेजेंट वैल्यू इन दिस केस वुड बी अमाउंट टू बी रीपेड इन सेकेंड फेज एंड उसके आगे माइनस का साइन लगेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था. फ्यूचर वैल्यू वुड बी 0. नाउ प्रेस ओके and here we got the installment amount of second phase. Now similarly we have to calculate for the initial phase. Actually already formula उसके अंदर लगा हुआ है but the only thing is पहले amount to be repaid हमने C कॉलम के अंदर लिखी हुई थी वो B कॉलम में शिफ्ट हो गई है. तो बस यहाँ पर जो हमारी फ्यूचर वैल्यू होती है वो फ्यूचर वैल्यू इस केस में होती है अमाउंट ऑफ लोन माइनस अमाउंट टू बी रीपेड. तो अमाउंट टू बी रीपेड का सेल जो है वो चेंज हो गया, बस उसका रेफरेंस थोड़ा अलग करना था, पहले से चेंज करना है. Okay, so here we got the installment amount as well. Now the same formulas are going to be used for creating this whole format. तो जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर करा था वैसे ही हमें इस वाले क्वेश्चन में करना था. द ओनली थिंग वाज कि हमें अमाउंट टू बी रीपेड नहीं पता था, हमें वो पता होना चाहिए कि वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. रेस्ट ऑल द कैलकुलेशंस आर सेम. सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ डू वी कैलकुलेट rescheduled loan sheet in case periodicity is rescheduled. In our next video we will be covering rescheduling of rate of interest and floating rate of interest. तो if you have understood कि हम ये कैसे क्रिएट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर अगर सारा समझ में आ गया तो वो भी बहुत ईजिली समझ आ जाएगा. So do watch that video as well and thanks for watching this video.